everyone, my name is Amit and you're watching Aptitude 360.online. In this video, I'm gonna solve 5 problems जो नंबर सिस्टम के एक बड़ी ही पेक्यूलियर वैरायटी से पूछी जाती है और अगर आप इन प्रॉब्लम्स को लगा लें तो आप बड़े ही आसानी से यूपीएससी सीसैट में अपने क्वालिफाइंग नंबर्स को ला सकते हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू रीड दिस वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आउट हियर. वैसे इन प्रॉब्लम्स को लगाने के पहले हमारे को डिजिट और नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए. Say for example, if I say that I got 98, so I would say that 98 is a 2-digit number जहां पे 8 is the digit at the unit place and 9 is the digit at the tens place. Is that okay? Now if I say 123, again it is a 3-digit number, 3 being the digit at the unit place, 2 being the digit at the tens place, whereas 1 being the digit at the hundreds place. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिजिट किसको बोलते हैं. एनीथिंग बिटवीन 0 to 9 इज नोन टू बी अ डिजिट. उसके बाद में आप 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, आप सो फोर्थ एंड सो ऑन बना सकते हैं. अब इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझते हैं. अब ये कहना क्या चाहता है? ये कह रहा है कि 3p एंड देन 4p एंड देन pp एंड देन pp. पढ़ने में इट इज इंटरेस्टिंग. सो दिस कम्स आउट एज RQ2. Now, problem is asking us to find out the values of P, Q and R. अगर मैं चार के चारों P को ऐड करूं, isn't it? So the unit digit should be 2. और वो पॉसिबिलिटी आपकी है कहां पे? अगर आपने say for example आपने P को लिया, as I said that P can be anything from 0 to 9, but P 0 तो नहीं हो सकता. P can be 1 or 2 and then 3, 4 and then 5 and then 6, 7, 8 और 9 यही हो सकता है, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ 4p? अगर आपने 4p लिया तो इट शुड बी लास्ट में यूनिट प्लेस पे आना चाहिए 2. आपने p लिया 1 तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है. आपने p लिया 2, अगेन दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. व्हाट इफ यू टेक p as 3, which is what? Which is, if you take p as 3, this is coming out as what? 4 into 3, which is 12. So unit digit पे बना कितना? 2. So there is a possibility, isn't it? So p can be 2. Again, what if we take 4 into 4? Not a possibility. 4 into 5 is not a possibility. 4 into 6 is not a possibility. 4 into 7, which is 28, is also not a possibility. But the moment you move on to 8, it is 4 into 8. It is 32. So do we have a possibility? Yes, we have a possibility. So p की वैल्यू हो क्या सकती है? As we learned that p can be either of 3 or 8. Are we clear with this thing? एक तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए. Now, what is that you need to understand? अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहां पे अगर हमारे को सम निकालना हुआ. Understand this. When you take p as 3, when you take p as 3, so this value will obviously be 2. 1 will be the carry forward, isn't it? So this becomes 3 plus 4. So what is the first possibility when you take p as 3? So you have got over here, this is 3 plus 4 plus p and p will be 2p, which is 6. So that's 6 plus 1 carry forward, isn't it? So this comes out as what? A total of 6 plus 4. This is 14. So this value comes out here as 142. So one possibility that we have got is 142. And if we plug in p as 8, so then what is that you will be having? From here you will be having a carry forward word. So you're going to have 3 as the carry forward, right? Plus 3, which is 6, plus 4, 10, plus p and p, which is going to be what? 8 and 8, 16. 16 plus 10, it becomes 256. और अगर आपने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ली तो यहां पे बनेगा कितना? 250, 252. Do you understand this? So there are the two possibilities of RQ2. अब हमारे से ये पूछा जा रहा है what is going to be the arithmetic mean of all such possibilities. 2 ही तो नंबर है, अब उनका arithmetic mean निकालना है. तो what do you think is going to be the answer? 142 plus 262, not this 262. You do this 262, which comes out as what? 404
divided by 2, and the final answer comes out as 202. There are only two possibilities because p can have only two values, either 3 और 8. जब हमने 3 यहां पे लिया तो कैरी फॉरवर्ड हमारा सिर्फ एक हुआ, तो एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी. When you take p as 8, then the carry forward will be 3. Then you will be having the second possibility. पहली पॉसिबिलिटी में जो आंसर आएगा वो आएगा 142. दूसरी पॉसिबिलिटी में जो आंसर आएगा वो आएगा 262. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम. अब आप देखिए इस प्रॉब्लम को 2021 में पूछा गया था. तो क्या आपको नहीं लगता कि डिफिकल्टी जो है यूपीएससी सीसैट की वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? Isn't it? So let us get started and try to understand this way. Second problem out here. Pause the video, try to solve this question on your own. It says that consider the following multiplication problem, which is what? The multiplication problem is p into q into 3. This value comes out as r, q and q, where p, q and r are different digits and r is not 0. Now, if r is not 0, so first of all, what is the very first step? The very first step is it has to be q into 3, and then the last digit will have to be q. Do you understand this? And what is that possibility? You see, if 5 gets multiplied with any odd number, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, the last digit necessarily will be 5. आपको समझ में आ रही है? और अगर आपने 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. One thing which is absolutely clear, if you want this last digit as q, so then this q will have to be nothing else but 5. So 5 3s are 15. So this value comes out as out here. This value comes out as 5. And then if it happens, 1 will go ahead as a carry forward, isn't it? Because 5 into 3 is 15. What is that we should be doing now? The second possibility, or not the second possibility, rather the second step. This is p into 3 plus 1, isn't it? P into 3 plus 1 will have to be rq, which is what? R and 5. Again, it has to be the unit place will have to be nothing but 5. अब p की जो वैल्यूज है वो होंगी क्या? p की वैल्यूज 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहां पे ये बोला जा रहा है that p should be multiplied with 3 and then should be added with 1, और जो यूनिट डिजिट का जो डिजिट है वो आ जाए 5. What is the possibility? If you do the number crunching from 1 to 9, you will realize that अगर हमने p को रख दिया 8, so this is coming out as what? 8 into 3 plus 1, and this value comes out as 225. बनी बात हमारी. So ये जो नंबर बना वो क्या बन गया? 2, 5 and 5. But they are not asking you this. ध्यान दीजिएगा आप ये. आपसे वो पूछा जा रहा है कि you have to find out value of this expression. So what is that we have found out? We have found out that q is 5, isn't it? And then we also found out that r is 2, and then we found out that p is 8. And the problem out here is, it's a board mass problem. वहां पे ये पूछा गया कि p plus r in the bracket divided by q, what is going to be this value? आपने अगर बोर्ड मास पढ़ा है तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट होता है. तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है, विच इज 8 प्लस 2, एंड देन इसको आपको डिवाइड करना है. तो यानी व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? द प्रायोरिटी नंबर 1 इन बोर्ड मास, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सॉल्व करते हैं. यही तो होता है. और अगर आपने ऐसा किया तो दिस बिकम्स 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड द फाइनल वैल्यू कम्स आउट एज 2. सो इफ यू सी, यहाँ पे दो अलग अलग जो लर्निंग्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया सेम प्रॉब्लम पे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन ऑल्सो. नाउ let us solve this one. This was asked in CSAT 2020, and this is such a good problem to solve. It says that let A3BC, which is A and then 3 and then B and then C and D, E to F be a 4-digit number
where each letter represents a different digit greater than 3. So all the digits will have to be greater than 3. So which is what? 4 and then 5 and then 6, 7, 8 and then 9. So how many digits do we have here? 1, 2, 3, 4, 5 and then 6. So 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the 6 digits and 6 alphabets. Now the sum is given to you as 15902. अगर सम ये हुआ तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? You need to find out what is going to be the difference between the values of A and D. So what is going to be our first step? अगर हमने एडिशन करना शुरू किया इस प्रॉब्लम पे, so the very first thing that we do is what? C plus F. And if we do C plus F, the unit digit will have to be 2. और क्योंकि हमारी कोई भी वैल्यू यहाँ पे 9 से बड़ी तो है नहीं, isn't it? और अगर ये 9 से बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होना चाहिए 12, इसके ज्यादा तो हो नहीं सकता भाई। ये मैक्सिमम वैल्यूज होती 9 एंड 9 तो सम होता 18, बट दोनों वैल्यूज 9 हो ही नहीं सकती, सिर्फ एक ही 9 हो सकता उसमें से। तो ये जो सम बनेगा वो 12 ही बनेगा और तो कुछ हो नहीं सकता। नाउ लेट अस क्रिएट द पॉसिबिलिटीज आउट हियर। अगर ये 12 होना है और कोई भी वैल्यू यहां पे 4 से कम नहीं हो सकती, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट वैल्यू? इट इज 4, C. And if it is 4, then this will have to be what? 8. 4 plus 8 is 12. You see, I do not know if C is 4 or F is 4. But मैं ये बता सकता हूं C और F में कोई भी एक 4 होगा और दूसरा 8 होगा. Now, can this be 5 plus 7 also? Yes, it is. And then if you take 6 plus 6, दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकता, तो आपके पास में यही दो पॉसिबिलिटी है यहां पे, राइट? नाउ I'm gonna move ahead and what is my second step out here? Second step में ये बोला जा रहा है कि B plus over here B plus 2 plus एक carry forward आगे जाएगा ही जाएगा, because if it is 12 then 2 will be written and 1 will go ahead as carry forward. और अगर ऐसा है तो B plus 2 plus 1 होगा the second step. अब यहां पे ये वैल्यू क्या दे के रखी है? ये 0 दे के रखा हुआ। इसका मतलब ये जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 10, और अगर 10 होना चाहिए तो इसका मतलब B plus 3 is equal to 7, B plus 3 is equal to 10 and the value of B will come out as 7. और जैसे ही आपको ये पता चला कि B 7 हो जाएगा, यहां पे ये जो पॉसिबिलिटी है ये वाली, बिकॉज हमारे हिसाब से C और F में कोई तो 7 होना चाहिए था, जो पॉसिबिलिटी अब नहीं रही, बिकॉज B itself has come out as 7. Now, what is going to be the third step to simplify this problem? I hope you're understanding this. I hope you're understanding this. अब आप ये देखो, the third step is this, which is 3 plus E is equal to 9. एक तो कैरी फॉरवर्ड भी आया होगा यहां से. What would have been this value? What would have been this value? 1, एक तो आपने कैरी फॉरवर्ड भेज दिया आगे, तो ये हो गया 1 कैरी फॉरवर्ड प्लस 3 प्लस E, isn't it? ये हुआ 9, क्योंकि 19 होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं. सो द वैल्यू ऑफ E कम्स आउट एज व्हाट? इफ यू सी द वैल्यू ऑफ E कम्स आउट एज 5. आपके पास 3 वैल्यूज आपने ऑलरेडी निकाल दी हैं. वो कौन कौन सी वैल्यूज है? ध्यान से देखिए आप. वो वैल्यूज है यहां पे, ये 4 और 8 में कोई भी 4 और 8 में कोई भी C होगा या F होगा, दोनों में से कोई एक होगा. We have found out that our B is 7. We also found out that our E is 5. So what are the values that we are left with? We are left with 2 digits and 2 alphabets. वो alphabets कौन से हैं? A and D. And वो digits कौन से हैं? 6 and 9. And what is your problem out here? Let us see the problem. The problem is, what is the difference between A and D? What did I say? A और D में कोई भी एक होगा 9, कोई भी एक होगा 9, तो दूसरा होगा 6. एंड द प्रॉब्लम इज नॉट इवन आस्किंग यू टू फाइंड आउट कि A बड़ा है या D बड़ा. वो तो सिर्फ इतना बड़ा बोल रहा है कि इन दोनों अल्फाबेट्स या इन दोनों डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा. डिफरेंस ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 3 एंड योर प्रॉब्लम इज सिंप्लीफाइड. आई होप यू गॉट दिस. तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे के सारे डिजिट्स बेस्ड प्रॉब्लम है. अगर आप डिजिट्स, नंबर्स, उनकी प्लेसिंग अगर आप ये समझ जाए तो आप आसानी से एक प्रॉब्लम तो यूपीएससी सीसैट में लगा ही लेंगे. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड and try to simplify the next one, which was asked in 2021 CSAT.
Now I really like this problem. It says that the difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the position of its digits is 54. आजकल CSAT में ना जो प्रॉब्लम्स की जो लैंग्वेज है वो बड़ी वर्बोस है, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं, भले ही वो सिंपल हो बट प्रॉब्लम्स बड़े रखे जा रहे हैं और यही इंटरप्रेट करने में स्टूडेंट्स को लगता है कि बड़ा प्रॉब्लम दिया है इसका मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा और उसको वो छोड़ के चले आते हैं। बट बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख के रखा हुआ है तो प्रॉब्लम कितना ही बड़ा हो आपको क्या फर्क पड़ता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सम ऑफ द डिजिट्स। एक तो पहले हम वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसी को इंटरप्रेट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर, मान लो ये टू डिजिट नंबर मैंने लिया ए बी, ठीक है जी, कोई भी टू डिजिट नंबर लिया ए बी। कैन आई राइट दिस एज 10a plus b in terms of its digits? समथिंग लाइक 23। तो क्या मैं 23 को 10 into 2 plus 3 लिख सकता हूं? तो सिमिलरली मैंने क्या किया, ए बी को 10a plus b लिख दिया। और अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम बोलता है कि आप क्या करो, इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब जो यूनिट पे है उसको टेंस पे भेज दो, जो टेंस पे है उसको यूनिट पे भेज दो, और ऐसा करने के बाद में ये क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, इजंट इट? और अगर ये बी ए बन गया तो ये हुआ कितना, इन टर्म्स ऑफ इट्स डिजिट्स कैन आई राइट दिस इज व्हाट 10b plus 8। सिमिलरली अगर आपको लिखना होता 32, क्या आप इसको 10 into 3 plus 2 बोल पाते? इज दैट ओके विथ यू? अब प्रॉब्लम क्या पूछा कि आप डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर यानी ए बी माइनस बी ए, अगर मैंने ऐसा किया, एक तो मेरा जो अजम्पशन है कि वो ये है कि ए बी से बड़ा है। जैसे ही मैंने ए बी में से बी ए को सब्सट्रैक्ट किया, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, दिस वैल्यू इज 10a plus b एंड दिस वैल्यू इज 10b plus a। तो इसका जो आंसर आया वो आया 9 times a minus b। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखो ये कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यहां से शुरू करना है ये सारा का सारा। आप एग्जाम में तो ये जो लाइन है, एग्जाम में तो आप सीधे ये वाली लाइन लिखेंगे, बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है मैंने सोचा आपको इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के पहले मैं एक बार बता देता हूं। नाउ यू हैव गॉट ए बी माइनस बी एज 9 times a माइनस बी। मैंने क्या बोला, मेरा अजम्पशन क्या था यहां पे, मेरा अजम्पशन है कि ए बी से बड़ा है। ये वैल्यू आपको प्रॉब्लम के हिसाब से कितनी देके रखी है, ये वैल्यू प्रॉब्लम के हिसाब से देके रखी है आपको 54। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ a माइनस बी? a माइनस बी ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 6। सो वी हैव फाउंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। अब अगर हमने डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स निकाल दिया तो प्रॉब्लम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कैन बी डिटरमिन्ड। यस इट कैन बी डिटरमिन्ड ऑब्वियसली अंडर ऑल द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। जो डिफरेंस के बीच का, जो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज 6। तो एक तो ये हमारा निकल गया। दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे से पूछा गया वो क्या पूछा गया, लेट अस सी दैट। प्रॉब्लम है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमिन्ड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नोन। अंडरस्टैंड दिस? अगर मैंने बोला ना कि मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं ये ले लूं ए बी, ठीक है जी, ए बी से कितना बड़ा, ए बी से 6 बड़ा, तो मैंने अगर बी को रखा 1 तो मेरे को ए रखना पड़ेगा 7, क्यों देखो 7 minus 1 इज कमिंग आउट एज 6। अगर मैंने बी को रखा 2 तो मेरे को ए कितना रखना पड़ेगा, ए को रखना पड़ेगा 8। डिफरेंस को हमेशा 6 रखना ही है, एंड देन दिस कम्स आउट एज 3 एंड देन दिस इज 9। So there are the 3 possibilities that we will have to deal with. Now you understand this. Even if I know the product of the digits, I would not be able to find out what is going to be the sum of the digits, right? Hence, what is going to be the option out here? Option number 2 is the right answer. And understand, if you have understood the concept, probably आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए था the difference between a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is going to be 9 times some certain difference, isn't it? और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए प्रॉब्लम सिर्फ 15 से 20 सेकंड का प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसको 1 मिनट 2 मिनट बैठिए इसके ऊपर में। Now I'm gonna move ahead and I'm gonna solve 2019 problem. It says that the number 136 out here, 136 is added to 5b7
and if you add these two, we get 7a3, where a and b are the integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3, the only possible value of b. Understand this. What is going to be our first step? Our first step is 6 plus 7, which is what? 6 plus 7 is 13. तो यहां पे अगर आपने 3 लिखा तो 3 लिखने के साथ 1 जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड में जाएगा. तो 1 अगर कैरी फॉरवर्ड गया तो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? द सेकंड स्टेप इज 3 प्लस b प्लस दैट 1 कैरी फॉरवर्ड विच इज कमिंग आउट एज 4 प्लस b. अभी मेरे को ये नहीं पता कि b की वैल्यू है कितनी, बट अगर आप यहां पे देखिए द थर्ड स्टेप जो होना चाहिए था इस प्रॉब्लम के लिए, थर्ड स्टेप ये होना चाहिए था इसका 1 plus 5. Now this is given to you as 7, but 1 plus 5 cannot be 7. इसका मतलब है कि यहां से 1 कैरी फॉरवर्ड तो जरूर गया होगा, आप समझ रहे हैं. और अगर 1 कैरी फॉरवर्ड गया होगा तो इट वुड हैव बीन अ 2 डिजिट नंबर. तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 plus b is coming out as what? यहां पे तो a होगा और a के आगे कोई एक डिजिट होगा यहां पे, और वो वही वहां से आगे कैरी फॉरवर्ड जाएगा, which is in this case which is 1. तो a लिख दिया और 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड भेज दिया. आपसे पूछा गया कि आप b की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको बता दो. अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर हमारे को ये निकालना हुआ कि 7 plus 3, 7 plus what is this? Problem says that this is divisible by 3. So what is the divisibility rule of 3? Sum of digits must be divisible by 3. So 7 plus 3 plus 10. 7 plus 3 plus a. So 10 plus a. So this will have to be divisible by 3. अब ये होगा क्या? देखो ना, डिविजिबिलिटी अगर आप चेक करोगे या तो ये 12 होना चाहिए, या तो ये 15 होना चाहिए, या तो ये 18 होना चाहिए, कुछ ऐसा ही होना चाहिए. अच्छा, ये 18 तो होने से रहा ये. So this is gonna be what? A in this case is going to be what? 2. A in this case is going to be what? 5. And A in this case is going to be what? 8. इसके आगे पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं because A is a digit. Now, अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए ना कि यहां पे B क्या रखना चाहिए कि A है जो हो वो इन तीनों में से कोई वैल्यू आ जाए. अब अगर हमने यहां पे B को रखा 2, एंड अंडरस्टैंड दिस, ये होना क्या चाहिए? इट हैज टू बी अ 2 डिजिट नंबर. तो 4 plus b will have to be this. So इसका मतलब b होना क्या चाहिए? b बड़ा होना चाहिए 5, 6 से तो बड़ा ही होना चाहिए. So जैसे ही मैंने b को रखा 2, तो ये 3 plus 1 4 plus 2 ये पॉसिबिलिटी गई. मैंने रखा 5, मेरी पॉसिबिलिटी गई क्योंकि मेरा 2 डिजिट नंबर बन ही नहीं पा रहा. अगर मैंने b को रखा 7, 3 plus 7 10, 10 plus 1, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे लेकिन जो बनेगा a की वैल्यू यहां पे बन नहीं पाएगी वो, तो मेरा 7 पे गया. व्हाट इज द ओनली वैल्यू दैट आई एम लेफ्ट विद? अगर मैंने b को रख दिया 8, देखो ना यहां पे ये तो रहा 3, 7 plus 6 3, और अगर b को रखा 8, 8 3 11, 11 1 12, so this will be 2, and then this will be, so this is what we are getting. So 7 plus 3 plus 2, are we having a value which is divisible by 3? Yes. So what is the only value of b which is possible out here? A 8 हुआ. So this was a good problem to solve. Now understand this. UPSC CSAT is something which is getting tougher and tougher year after year, क्योंकि जब से DOPT ने रिकमेंड कर दिया है कि आप इस पेपर को स्क्रैप कर दीजिए, यूपीएससी ने DOPT को रिकमेंड करने के बाद पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है. तो आपको क्या करना है? आपको इसको सीरियसली लेना है इफ यू रियली वांट टू राइट योर मेंस एग्जामिनेशन. तो मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव ब्रॉट फॉर यू एब्सोल्युटली फ्री 40 आवर्स क्रैश कोर्स ऑन यूपीएससी CSAT, जो मेरे हिसाब से आपको इस पेपर को निकालने के लिए सफिशिएंट है. सो ज्वाइन माय वीकेंड क्लासेस, द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Go through that and join those classes, right? Thank you very much for watching this video.